السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک بھر میں شہریت ترمیمی ایکٹ یعنی CAA کے نفاذ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کنٹرول میں آنے کے بعد ملک بھر میں شہریت ترمیمی ایکٹ کو نافذ کر دیا جائے گا۔ امت شاہ 2 روزہ مغربی بنگال کے دورے پر تھے، جہاں اگلے سال اپریل یا مئی میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انہوں نے مودی کی قیادت میں بنگال اسمبلی انتخابات جیتنے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ بنگال میں ممتا بنرجی کا دور اقتدار ختم ہونے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام پناہ گزینوں کو ہندوستانی شہریت دی جائے گی، بس کورونا وبا کے کنٹرول ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے دیواس ڈسٹرکٹ میں دیوالی کے موقع پر پٹاخے فروخت کرنے والے مسلم دکانداروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام والے پٹاخے اور آتش بازی کی دیگر اشیاء فروخت کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ قبل ازیں ہر سال دیوالی کے موقع پر کروڑوں روپیوں کی آتش بازی اشیاء خریدی جاتی تھی، اور ان کا نام کون سے ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہے اس پر کوئی غور ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ پٹاخے فروخت کرنے والے اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے تھے اور نہ ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ایسے ویڈیوز منظر عام پر آ رہے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو مسلم دکانداروں کی دکانات میں گھستے ہوئے دکھایا گیا، جن میں سے کچھ نے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں یا زعفرانی رنگ کا اسکارف ان کے گلے میں ہے۔ دکانداروں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر مسلم دکاندار دکان سے کوئی لکشمی بم یا گنیش بم بھی فروخت ہوا تو سنگین نتائج کے لیے مسلم دکاندار ذمہ دار ہوں گے۔ ہندوستانی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے جمعے کو دعویٰ کیا کہ مشرقی لداخ میں حقیقی خطہ قبضہ یعنی LAC کی صورتحال ہنوز کشیدہ ہے اور چین کے ساتھ جنگ خارج از امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی صورتحال اور سرحدی ٹکراؤ بڑی جنگ کی شکل اختیار کر لے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ہندوستان اور چین نے جمعے کے دن سوشل میں فوجی بات چیت کا 8واں دور شروع کیا۔ ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو بامبے ہائی کورٹ سے آج بھی مایوسی ہی ہاتھ لگی اور اب انہیں اپنی رہائی کے سلسلے میں عدالتی حکم کے لیے مزید ایک اور دن کا انتظار کرنا پڑا۔ واضح ہے کہ عدالت نے دوسرے دن بھی سماعت کے دوران اپنے اسی موقف کا اظہار کیا کہ وہ دونوں فریقین کے بیانات سماعت کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گی۔ جسٹس شندے نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں ہم تمام فریقین کو سماعت کریں گے، ہم سب کو سنے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ واضح کے ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو، جنہیں 2018 کے خودکشی کے معاملے میں 18 نومبر تک 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے، بامبے ہائی کورٹ نے 5 نومبر کو عبوری راحت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد کوئی مناسب فیصلہ دے گی۔ آج کی سماعت میں بینچ نے اپنے حکم میں کہا کہ کل دوپہر 12 بجے معاملے کی سماعت کے لیے تمام فریقین میں اتفاق رائے ہے۔ ہریانہ کے وزیر داخلہ انل وج نے آج اسمبلی کو بتایا کہ ریاستی حکومت لفظ جہاد کے خلاف قانون سازی پر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہماچل پردیش سے معلومات حاصل کی جا رہی ہے، جس نے اس مسئلے پر ایک بل کو منظوری دی ہے۔ ہماچل پردیش اسمبلی میں گزشتہ سال جبری مذہب تبدیلی کے خلاف ایک بل منظور کیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے اس سال فروری میں دہلی میں ہوئے فسادات کے سلسلے میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طلبہ لیڈر عمر خالد کے خلاف انسداد غیر قانونی سرگرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی ہے۔ دہلی پولیس نے ان فسادات کے سلسلے میں عمر خالد کو گرفتار کیا تھا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے مطابق کسی بھی شخص کے خلاف غیر قانونی سرگرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کے لیے وزارت داخلہ سے منظوری درکار ہوتی ہے۔ پولیس نے ان فسادات کے سلسلے میں 15 افراد کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے۔ دہلی پولیس کے ایک عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ دہلی حکومت اور وزارت داخلہ دونوں کی طرف سے اس قانون کے تحت عمر خالد کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت مل چکی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں جمعے کی نماز کے موقع پر کشمیر کے شری نگر کی درگاہ حضرت بل میں مرد و خواتین پر مشتمل ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ درگاہ حضرت بل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک موجود ہیں۔ شہر کی مختلف مساجد بشمول جامع مسجد میں بڑے اجتماعات نظر آئے۔ اسی دوران ہزاروں افراد نے نماز جمعہ کے لیے تاریخی جامع مسجد میں موجود تھے۔ اس موقع پر انجمن اوقاف جامع مسجد اور امام الحی سید احمد نقشبندی نے گھر پر نظر بند میر واز مولوی فاروق کو رہا کرنے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے مطالبہ کیا۔ گزشتہ سال جموں کشمیر کے خصوصی موقف کی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پہلی مرتبہ ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیف منسٹر و نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ اس وقت تک ہرگز نہیں مریں گے جب تک کہ سابقہ ریاست کے عوام کے حقوق بحال نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے BJP کو چیلنج کیا کہ ملک کو گمراہ کرنے اور جھوٹے وعدے کرنے کے بجائے ان کے سوالات پر رد عمل ظاہر کریں۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ عوام کے حقوق کی بحالی کا کام جب ختم ہو جائے گا میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ فاروق عبداللہ جموں کشمیر کے کشمیر بھون میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔
उत्तर प्रदेश के लखनऊ इंतजामिया ने फिर एक बार उन कारकुनों के बाद तस्वीर पोस्टर्स लगा दिए हैं जिन्होंने जारिया साल के शुरू में शरीयत तरमीमी कानून यानी सीए के खिलाफ मुहिम चलाई थी। जुमेरात के दिन लगाए गए इन पोस्टर्स में मुलजिमीन की जानकारी देने पर 5,000 रुपये इनाम का ऐलान किया गया है। वांटेड के लेबल वाले इन पोस्टर्स में 8 मुखालिफ सीए कारकुनों की तस्वीर मौजूद हैं जिन्हें मफरूर करार दिया गया है। पोस्टर्स पर इनके नाम और पते मौजूद हैं। डेमोक्रेटिक लीडर जो बाइडेन अमेरिकी सदारती इंतखाबात में जीत हासिल करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। ताज़ा रायशुमारी के दौरान इन्हें 4 के मुजमला 3 रियासतों में ट्रंप पर सबकत हासिल हो गई है। हर गुजरते वक्त के साथ रिपब्लिकन लीडर और सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाले वोटों की तादाद में कमी होती जा रही है। ताज़ा रायशुमारी के मुताबिक जो बाइडेन 264 इलेक्ट्रॉल वोट हासिल कर चुके हैं जबकि ट्रंप को 214 वोट हासिल हुए हैं। 538 इलेक्ट्रॉल वोट्स में सदर के इंतखाब के लिए उम्मीदवार को 270 वोट हासिल करना ज़रूरी है। इस तरह बाइडेन को व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए सिर्फ 6 वोटों की ज़रूरत है। जिन 4 रियासतों के इंतखाबी नतायज का इंतजार किया जा रहा है इनमें जॉर्जिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन ने जिद्दा पहुंचने पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी आमद की तस्वीर और वीडियोस शेयर किए हैं। इन तस्वीर में ज़ायरीन को जिद्दा से मकसद पहुंचने और सरजमीन मुक़द्दस पर कदम रखने पर खुशी के साथ सरशार देखा जा रहा है। ख्याल रहे कि बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरे मुल्कों से हवाई जहाज़ों के जरिए उम्रे के मनासिक की अदायगी के लिए आने वाले कोरोना की वबा के पेश नज़र सख्त हिफाजती इक़दाम के पाबंद है जबकि सऊदी हुकूमत ने इनकी सेहत व सलामती के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा है कि जीएचएमसी इंतखाबात में बहैसियत कॉरपोरेटर मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को 5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम खर्च करने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही रिजर्वेशन में कोई तब्दीली नहीं है और ना ही हल्कों में कोई तब्दीली होगी। SC, ST, BC और ख़वातीन के लिए साल 2016 में जो तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी हुई थी अब भी वही तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में शामिल कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और कमिश्नर जीएचएमसी के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। साथ ही अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेरचल, मलकाजगिरी के एडिशनल कलेक्टर्स को ड्यूटी इलेक्शन ऑफिसर्स की हैसियत से नामजद करने का फैसला किया। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार को एडिशनल कलेक्टर से राब्ता तालमेल पैदा करते हुए आज़ादाना माहौल में इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा जीएचएमसी काउंसिल की बुनियाद आइंदा साल 10 फरवरी 2021 तक है। इससे कबल इंतखाबात करवाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गैर मंजूरा लेआउट्स को बाकायदा बनाने से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर तनकीद की है। हुकूमत ने GO 131 के जरिए लेआउट्स को बाकायदा बनाने की स्कीम का ऐलान किया था। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस B विजयसेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि किस कानून के तहत गैर मिजाज लेआउट्स को बाकायदा बनाने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने किस कानून के तहत इस मसले में GO जारी किया। चीफ जस्टिस ने हाल ही में हैदराबाद और वरंगल शहरों में सैलाब की बड़े पैमाने पर तबाही और मुख्तलिफ कॉलोनियों के मुतासर होने का हवाला दिया और कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की जानिब से GO की इजराई का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। इस स्कीम से लेआउट डेवलपर्स और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की हौसला अफजाई होगी। महकमा सेहत ने रियासत में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए टेस्टों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है। रियासत भर में रोजाना 40,000 से ज़ायद टेस्ट किए जा रहे हैं लेकिन महकमा सेहत ने मोबाइल टेस्टिंग गाड़ियों के जरिए रोजाना 15,000 इजाफी टेस्ट का निशाना मुकर्रर किया है। माहिरीन ने दुनिया भर में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के बारे में ममालिक को चौकस किया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के दूसरे लॉकडाउन की अफवाहों के सबब शहर हैदराबाद में भी शहरियों की जानिब से अजनास व अशिया ज़रूरिया की खरीदी की जाने लगी है लेकिन रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मज़ीद किसी लॉकडाउन का कोई इशारा नहीं दिया गया है। मगर कहा जा रहा है कि अगर मुल्क में दूसरी लहर तेज़ होती है तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जानिब से सख्त फैसला किया जा सकता है। दिल्ली, केरला, आंध्र प्रदेश के अलावा रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में हो रहे इजाफे को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया जाएगा बल्कि रियासतों और रियासती हुकूमतों को लॉकडाउन के सिलसिले में इख्तियारात दे दिए जाएंगे। यूरोपीय ममालिक में दूसरे मरहले के लॉकडाउन और बरतानिया में लॉकडाउन के आगाज़ के बाद हिंदुस्तानी शहरियों में भी अब तशवीश पैदा होने लगी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सैलाब मुतासरीन में 10,000 रुपये तकसीम करने का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। ताहम पुराने शहर के कई इलाकों में अवाम को अब भी इस रकम का इंतजार है। बाज़ अफराद ने शिकायत की कि इन्हें दानिस्ता नज़रअंदाज किया जा रहा है, दुरुस्त मदद नहीं की गई। अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि पुराने शहर के मुतासरीन को नज़रअंदाज किया गया है। मेयर बल्दिया डॉक्टर बी राम मोहन ने आज विजयनगर कॉलोनी, मासाब टैंक, मेहदीपट्टनम सर्कल इलाकों में सफाई मुहिम अंजाम दिया। हालिया बारिश का सैलाब के पानी की वजह से कई इलाकों में मलबा, कचरा, कीचड़ जमा है। गंदगी से अमराज फूट पड़ने का अंदेशा पाया जाता है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव KT रामाराव की हिदायत पर शहर को साफ सुथरा बनाने की सफाई मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए मेयर बल्दिया राम मोहन ने आज सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। साइबराबाद पुलिस हर केस को चैलेंज के तौर पर कबूल करती है, ताहम गुमशुदगी के मामलात में वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। ये बात कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनान ने बताई। उन्होंने आज गुमशुदगी के मामलात पर पुलिस की संजीदगी और इक़दामात से मुतालिक मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि साइबराबाद पुलिस हर केस को चैलेंज के तौर पर कबूल करती है। उन्होंने बताया कि साइबराबाद हुदूद में दर्ज किए जाने वाले गुमशुदगी के मामलात का जायजा लिया जाता है और ताज़ा जायजा में ये बात सामने आई है कि अक्सर मामलात में लापता होने की वजूहात गलतफहमी और निजी मामलात व नाइत्तेफाकी अक्सर पाई गई है। उन्होंने नौजवान नस्ल के लापता होने के मामलात में वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और इनकी मसरूफियात का जायजा लें। रियासती वजीर IT व सनत KTR ने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की जानिब से तेलंगाना में 20,761 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान करने का खैर मकदम किया है। इस मौके पर KTR ने अमेज़ॉन इदारे को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इज़हार तशक्कुर किया है और कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तैयार करदा TS IPAS के अलावा मुतासिरकुन पॉलिसियों से तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की सरमायाकारी से मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने दरगाह हज़रत जहांगीर पीरान के तरक्याती कामों और अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स नामपल्ली की तामीर के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा हुकूमत के मुशीर AK खान, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम, सेक्रेटरी अक़ामती स्कूल सोसाइटी B शफ़ीउल्लाह और दीगर ओहदेदार इजलास में शरीक थे। हुकूमत ने दरगाह हज़रत जहांगीर पीरान की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और तोसी प्रोजेक्ट के लिए अराजी के हुसूल में ओहदेदारों को बाज़ दुश्वारियों का सामना है। इजलास में फैसला किया गया कि अराजी के हुसूल के अलावा मौजूदा दुकानदारों की बाज़ाबादकारी का मंसूबा तैयार किया गया। तरक्याती प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने के लिए कलेक्टर रंगारेड्डी को हिदायत दी गई।